Hello, good morning FIBCom students. Today I am going to start the remaining points which I did yesterday. That yesterday we were discussing about that inequalities due to caste system. That point number 5. You can see here occupation. Data from the Human Development brings out the data from the Human Development Survey brings out occupation of person belonging to in some are similar to those of the upper caste. The Dalits are employed as unskilled workers such as laborers, sweepers, etc. Further, the upper caste have much higher share among white collar employees. On the other hand, Dalits have much greater share among unskilled workers. So Dalits poorly paid and many of them engage in the unclean work. So here that the point is given occupation. Whenever we are talking about the occupation, then we can see the most probably Dalits are engaged in the unclean activities. They are worker as a unskilled workers because that like education has not provided them because of their poverty. That is the main reason, and that's why they are not taking the education and they have to work as a unskilled workers. When we talk about the upper caste, that they have much higher share among the white collar employees. So that is the difference we can see in the upper class and Dalits. Inequalities in land holding and property. SC still lag behind the other caste on the most socio-economic criteria, but OBCs are almost at par this with the other with the other regard to the rural incomes. In fact, they are investing more than the upper caste in the agriculture. On the other hand, SCs are in the deep distress and they lag behind in the ownership of the land. So that what is given the point inequalities in the land holding and property. So SC people or SC people, those who are backward classes, they are still lacking for the socio-economic criteria. That when we are the category is OBC, they are almost with that. They are almost with their social groups. Okay. For example, OBCs do not much differ from the upper caste with the regard to the rural incomes. When we are talking about the OBC people, they are too much related or they are similar at least to the upper class of the upper class. They are related to the upper class. And when we are talking about the rural income, in fact, they are investing more than the upper caste in the agriculture. I'm talking about the OBC people. जो ओबीसी पीपल होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर में उनका इनकम अच्छा होता है, वो एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट दिखाई देता है, तो वो अपर कास्ट से कम नहीं है। लेकिन जब हम एससी और एसटी पीपल की बात करते हैं, ओबीसी पीपल की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे एससी और एसटी पीपल स्टिल दे आर लेकिन फॉर द इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। आगे देखते हैं द ओनरशिप of the small business in the category of the self-employed person, OBCs have much higher share than the SC। तो जो हम OBC का बात करते हैं तो वो उसमें ज़्यादा हमें सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन दिखाई देते हैं कि रादर देन SC। दिस वॉज शोन बाय द इकोनॉमिक दिस वॉज शोन बाय द इकोनॉमिक सेंसस कंडक्टेड इन द 2013। कि ये किस हिसाब से हमें पता चला कि बाबा ये इकोनॉमिक जो सेंसस निकाला गया 2013 में, उसके हिसाब से पता चला कि जो ओबीसी कैटेगरी में जो इंसान आते हैं वो ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। दलित्स आर लीस्ट likely to start their own business. They are most likely work as a laborers for the others. Further, the highest share in the casual laborer category that of Dalit। कि हमें जो दलित जाति के लोग होते हैं वो ज़्यादातर अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करते हैं और उनके लिए वो एक लेबर की तरह दूसरों के लिए काम करते हैं। मोर एवर द शेयर ऑफ एससी own firms in the food and the beverages category is much lower than the average of the other social groups।
कि जब हम एससी पीपल की बात करते हैं और जब हम फूड और बेवरेज कैटेगरीज की बात करते हैं, तो उसमें वो दूसरे समाज के जो दूसरे लोगों से वो काफ़ी कम हमें दिखाई देते हैं. द सर्वे ऑल्सो फाउंड दैट most larger shape. The survey also found that the most much larger share of the ownership of the leather related industries among Dalit. कि हमें जो दलित लोगों का जो काम दिखाई देता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेदर से रिलेटेड या लेदर इंडस्ट्री से रिलेटेड हमें वहाँ पे दिखाई देता है. द सोशल डिस्क्रिमिनेशन माइट बी द रीज़न फॉर दिस. उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है कि जो हम उसके उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो एक पर्टिकुलर रीजन दिखा देते हैं, वो लेदर इंडस्ट्री से ज़्यादा जुड़े हुए थे. तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉवर्टी. पॉवर्टी लेवल्स आर द हाईएस्ट अमंग द एससी, दैट मोर देन द other population belong to the poor category. About 40% OBC and 20% upper caste Hindus are poor. तो हम जब पॉवर्टी लेवल की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे एससी पीपल ज़्यादा दिखाई देते हैं और उसमें 40% ओबीसी और 20% अपर कास्ट हिंदूज में इसमें आते हैं. कि आगे का बात करते हैं. Political representation. The political representation is not a sufficient condition for the social justice, but without political backing, the Dalits cannot get justice. Unfortunately, Dalits are very poorly represented in the political sphere. Means that Dalits are not included in the political sphere because of their representation in the society. Over the last 25 years, OBC have dominated the political scene in the uh, political scene in the Hindi belt of India. However, as the Uttar Pradesh Assembly election of 2017 showed, the political influence of OBC is declining. यहाँ पे अभी जब हम लास्ट 25 साल की बात कर रहे हैं तो हमें ज़्यादातर पॉलिटिकल स्फीयर में ओबीसी कैटेगरी के लोग हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं. और उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन में जो 2017 का वो दिखाता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ ओबीसी इज डिक्लाइनिंग. कि अभी ओबीसी का जो हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो कम हमें दिखाई देता है. 2017 का ये डाटा हमको ये बताता है. आगे का बात करते हैं. कॉम्बेटिंग कास्ट इनक्वालिटीज. कॉम्बेटिंग कास्ट इनइक्वालिटीज. तो अभी कॉम्बेटिंग का मतलब कहते हैं कॉम्बेटिंग मीन्स कंपेरिजन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was framed. Efforts have been made to raise the social and economic status of backward classes, particularly the scheduled caste. Various steps have been taken help backward classes. Combating means उसको उभारने के लिए या उसको सुधारने के लिए कौन से combating the caste inequalities. तो हम जब बात करते हैं कि जैसे हमें सभी को पता है कि बैकवर्ड क्लास को ज़्यादातर समाज में मान नहीं मिलता है. एक तो उनका रीज़न होता है पॉवर्टी. उनको हम बोलते हैं कि जैसे हमें अगले पॉइंट हम सब कुछ देख चुके हैं कि हाँ बाबा उनके साथ बहुत ही ज़्यादा लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता है. उनको वर्कर किस तरह काम करवाया जाता है, लेबर की तरह काम करवाया जाता है. तो ये सारे बहुत सारे रीज़न हैं. फिर भी जो भारतीय संविधान है उनको उनको ही अपने समाज में हक दिलवाने के लिए कुछ न कुछ उन्होंने कायदा कानून जरूर बनाए हैं. तो विच आर द स्टेप्स हैव टू बी टेकन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. Okay, that first point is constitutional measure. The Constitution of India has the provision and safeguard for the backward classes, especially for the SC. The safeguard are in the social, economic, political, and education and cultural fields. Though
जो भारतीय संविधान है उसमें कुछ प्रोविजन है सेफगार्ड बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाए, पर्टिकुलरली एससी पीपल के लिए। तो सेफगार्ड कौन से कैटेगरी में है, तो उनके लिए एक तो सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, एजुकेशन है, कल्चरल फील्ड, इन सभी फील्ड में उन्होंने प्रोविजन और सेफगार्ड बनाए हैं। Article 17 of the Constitution of India provides a social safeguard to the scheduled caste. Uh, and this article is concerned with the abolition of the untouchability. तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे देखिए हर एक आर्टिकल कुछ ना कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर सोशल से रिलेटेड, पॉलिटिकल से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड, तो आपको ये याद रखना है। तो आर्टिकल 17 है, द इंडियन आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द सोशल सेफगार्ड, क्योंकि उनके लिए जैसे फॉर एग्जांपल द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इट शुड बी रिमूव फ्रॉम द सोसाइटी। द पार्टी सॉरी द पार्लियामेंट enacted the protection of the civil right act 1955 to tackle the problem of untouchability. The act was amended and renamed the protection of the civil rights act in the 1876। तो जो पार्लियामेंट है वो उस पे काम करती है। अभी ये जो प्रॉब्लम है अनटचेबिलिटी उसको हैंडल करने का काम करती है। मीन्स यहाँ पे एक एक्ट दिया गया है, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, और दिस एक्ट वाज अमेंडेड एंड रीनेम। अभी इसी एक्ट को फिर से वापस दोबारा जो नाम दिया गया था, द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट इन 1876, ये जो पहले बन चुका था तो उसके बाद उसको वापस उसको दूसरा नाम दिया गया। The Constitution provides for the reservation of the seat for Dalit in Lok Sabha, State Assembly, Gram Sabha, Panchayat, Municipality and other local bodies। तो जो भी हमारे बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर है, या लोकसभा है, स्टेट असेंबली है, ग्राम सभा है, पंचायत है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और अदर लोकल बॉडीज है, वहाँ पे उनके लिए सीट रिजर्व होना चाहिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको सब कुछ वो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है कि रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, बर्थ प्लेस के नाम पे, तो वो निकाल देता है। देन आर्टिकल 46 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स require the state to take the special care in promoting educational and economic interests of the scheduled caste। जो आर्टिकल 46 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, वो क्या बताता है कि हर एक स्टेट को एक स्पेशल केयर लेना चाहिए, कि जो स्पेशल केयर किसे लेना चाहिए कि फॉर एग्जांपल वो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनके लिए, उनको पढ़ने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको अगर वो पढ़ेंगे तो उनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अच्छी होगी, तो इसके लिए उनको कोशिश करनी चाहिए। तो ये कौन काम करता है, तो ये हर एक स्टेट उसमें हर एक स्टेट वहाँ पे काम करता है। आगे देखते हैं, आर्टिकल 46 once again says that the educational and economic interests of the SC be protected and promoted। तो मैंने जो अभी बात बताई कि जो आर्टिकल 46 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कि दे आर टेकिंग द स्पेशल केयर फॉर प्रमोटिंग एंड एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, वही बात यहाँ पे रिपीट होती है। द अदर सजेशन for ending caste inequality. The first point is the law against the organization based on the caste. There should be the law for binding any organization that is based on the caste। कि हर एक फॉर एग्जांपल जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया जाता है तो उसको बाइंडिंग करने के लिए दैट इट शुड बी बेस्ड ऑन द कास्ट। कि हाँ फॉर एग्जांपल जैसे कोई बिजनेसमैन है तो जब वो बिजनेस करता है तो उसका रिलेशन वो ज़्यादातर अपने कास्ट के लोगों के साथ वो ज़्यादा रखेगा। Still there are many organizations in every small town. There are registered with the name of the particular caste. Such as organization should be banned। कि अभी हमें समाज में ऐसे कुछ लोग दिखाई देते हैं या ऐसे कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देते हैं कि उनका जो पर्टिकुलर नाम से ही उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया है। Then no caste in the matrimonial advertisement in the newspaper। The advertisement are printed caste wise in the newspaper। The people search directly for the particular caste. Then the government has the power to make the law forbidding such achievement। Then the people would merely look for the partner with the certain characteristics, not for the certain caste।
तो जैसे हम बोलते हैं कि मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट मीन शादी से रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजमेंट होती है, तो एडवर्टाइज जब न्यूज़पेपर में दिया जाता है तो वो पर्टिकुलर कास्ट से लेके दिया जाता है कि पर्टिकुलर कास्ट का इस तरह से हम बोलते हैं कि नाम के साथ उसके कास्ट के साथ उसका पूरा डेटा दिया जाता है। तो इसकी वजह से क्या कहते हैं, गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक फॉरबिडिंग टू मेक द लॉ फॉरबिडिंग सच अचीवमेंट, कि इसकी वजह से गवर्नमेंट को एक हम बोलते हैं गवर्नमेंट के पास इतना पावर है कि उनके लिए उनकी जो हम बोलते हैं ना कि ऐसी पीपल हो या एस टी पीपल हो तो उनके अचीवमेंट्स के लिए वो काम कर सके। एंड जो लोग अपने फॉर एग्जांपल की शादी के लिए जो इश्तेहार वगैरह देखते हैं तो उनके लिए एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे दिखाए कि नहीं पर्टिकुलर कास्ट दिखा देता है। अब अगर कास्ट अलग कास्ट का होगा तो भी वो शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। द encouragement of the new the encouragement of the intercaste marriage, तो intercaste marriage should be encouraged by the government। तो गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिज हो मीन्स इंटरकास्ट मैरिज देयर कैन बी नो ऑब्जेक्शन टू दिस, उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं। द गवर्नमेंट ऑलरेडी डिस्करेज द पीपल from having more than 2 children and they also run the campaigns for the birth control। तो इंटरकास्ट मैरिज के लिए एक तो गवर्नमेंट प्रमोट करती है और दूसरा होता है कि जो हम बोलते हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे हो तो उसके लिए हम बोलते हैं कि उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट हमेशा सतर्क रहती है। अपॉइंटिंग द लोअर कास्ट पीपल as the priests in the temple, the lower caste people are currently not allowed to enter the temples where the people of upper caste go। तो ज़्यादातर हमें ऐसे दिखाई देता है कि जहाँ पे अपर कास्ट के लोग मंदिर या वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे लोअर कास्ट के लोगों को एंट्री नहीं मिलता है। आगे का पॉइंट देखते हैं अभी, ये देखिए। The government has influence on the temple, so it can help in getting the Dalit as a priest of some temples। फिर भी गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है तो इसकी वजह से कि दलित भी वहाँ पे प्रीस्ट हो सकते हैं। ओके, इफ द दलित आर अपॉइंटेड एज अ priest of some temples, the prejudice against the SC, the prejudice against the SC विल बी रिड्यूस, कि अगर कोई दलित वहाँ पे प्रेस की तरह टेम्पल में काम कर रहा है तो फिर भी वो जो प्रेजुडाइसिस होता है ना कि लोगों के मन में जो प्रेजुडाइसिस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए काम रिड्यूस होना चाहिए कि लोगों का जो देखने का नजरिया ये तो शूद्र जाति का है तो फिर भी वहाँ पे वो पुजारी की तरह वो कैसे काम कर सकता है। द संस्कृतम कोटा बेसिस इंस्टीट्यूशन राजस्थान इज ट्रेनिंग द यंग बॉय टू बी द priest। तो ये यहाँ पे देखिए जो संस्कृतम कोटा बेसिस है इंस्टीट्यूशन है राजस्थान में, तो ऐसे युवा लड़कों को पुजारी बनने के लिए वो ट्रेनिंग देते हैं। Then the changing the last names, today it is still possible to recognize the caste of the person by their last name। The government should give the people one-time opportunity to change their last name anytime they like, and in this way the people cannot tell whether they belong to the higher or the lower caste। तो अभी ये न्यू ट्रेंड की वजह से अभी क्या है कि आप अपना सरनेम चेंज कर सकते हो और उसके ज़्यादातर जो लोग होते हैं कि अपने हम बोलते हैं कि सरनेम से जाने जाते हैं, लास्ट नेम से जाने जाते हैं, और गवर्नमेंट ऐसे सभी को अपनी अपने लास्ट नेम चेंज करने के एक न एक मौका ज़रूर देती है कि जब वो चाहे वो अपना लास्ट नेम चेंज कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि लोग अपर कास्ट से हैं या लोअर कास्ट से हैं। आगे का पॉइंट देखते हैं, कम्युनलिज्म। दैट communalism is an ideology which states that the society is divided into the religious community whose interests are different। कि कम्युनलिज्म एक ऐसी सोच है कि वो ऐसा दिखाता है कि जो सोसाइटी है वो रिलीजियस कम्युनिटी में बटी हुई है जिसका इंटरेस्ट ये जिसको हम बोलते हैं कि उसकी वजह से जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो हमें ज़्यादातर दिखाई देते हैं।
It implies an extreme sense of pride. It, it implies an extreme sense of pride in and identification with one's own religion community. तो हर एक को यहाँ पे जो हम कम्युनलिज्म से बात करते हैं तो वहाँ पे ऐसा हमें दिखाई देता है कि हर एक इंसान को वहाँ पे ऐसा लगता है कि मेरा धर्म ही सही है, मेरा रिलीजन ही सही है, तो वो एक्सट्रीम सेंस ऑफ प्राइड हमें वहाँ पे दिखाई देता है. The communalism implies the politics of conflict between the communities. तो कम्युनलिज्म वो क्या दर्शाता है, तो कम्युनलिज्म ऐसे दिखाई कम्युनलिज्म की वजह से हमें दिखाई देता है कि कम्युनिटीज में पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज कि कम्युनिटी में झगड़े झगड़े दिखाई देते हैं. द कम्युनलिस्ट मिस यूज द रिलीजन टू अचीव दर पॉलिटिकल गोल्स. तो ये हमें सबको पता है कि जो कम्युनलिस्ट होते हैं वो धर्म के नाम पे लोगों को उकसाते हैं और अपना पॉलिटिकल गोल वहाँ पे सेट करते हैं. द रूट ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया कैन बी ट्रेस बैक टू द ब्रिटिश पीरियड. During that period, the systematic steps were taken to create the disharmony between the people of the different communities. तो ये जो कम्युनलिज्म की जो हम बोलते हैं उसका जो जड़ है वो तो ब्रिटिश पीरियड से चलता आ रहा है और उसके दौरान कि उन्होंने एक सिस्टमेटिक उन्होंने स्टेप लिया था कि कोई भी लोगों के बीच में कम्युनिटी से लेके कोई भी डिसहार्मनी नहीं होनी चाहिए. The goal of the British rulers was to keep Indians divided and so that they are unable to challenge the British colonial rule. तो उनका जो गोल था ब्रिटिश रूरल का तो वो क्या था कि सभी इंडियन को हर एक हिस्सों में बांट के तो उसकी वजह से दे आर अनेबल टू चैलेंज द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. पर उनका जो इरादा था ब्रिटिश कॉलोनियल एस्टेब्लिश करने का चैलेंज तो वो ठीक नहीं रहा. मीन्स वो वहाँ पे वो रूलिंग नहीं कर पाए. अनफॉर्चुनेटली इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस द कम्युनल फोर्सेस आर एक्टिव. और उसके बाद भी आज़ादी के बाद भी जो कम्युनल फोर्सेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव बनते गए. हिंदू मुस्लिम clashes and the conflicts between the Hindu and Sikhs are arises out of the mutual antagonism. तो एंटेगोनिज्म का मतलब होता है कि जैसे हमें हिंदू मुस्लिम की लड़ाई झगड़े दिखाई देते हैं फिर हिंदू मुस्लिम के लड़ाई झगड़े दिखाई देते हैं फिर हिंदू और सिख ये जो हम बोलते हैं कि आउट ऑफ एंटागोनिज्म हमको दिखाई देता है. दैट इज व्हाई सच प्लेसेस आर कॉल्ड कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स. That the person can be the man of religion without earning and dishonor of being communal. तो हमें ये सबको समझ में आता है तो कि जो इंसान कि a man of religion without earning dishonor of being communal. तो क्या होता है कि बाबा जो इंसान होता है कि जिसका कोई रिलीजन ही नहीं है तो वो अपनी कम्युनिटी के हिसाब से कम्युनल कम्युनिटी उसको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं रहेगा कि कोई जो धर्म को ही नहीं मानता तो उसको कम्युनिटी में कोई अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है. इन द सेक्युलर सोसाइटी सच एज इंडिया एवरी सिटीजन कैन प्रैक्टिस हिज ओन रिलीजन विदाउट बीइंग कंसिडर कम्युनलिस्ट. कि यहाँ पे सबको हम बोलते हैं कि सबको यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि अपना हम बोलते हैं ना कि अपना रिलीजन यहाँ पे प्रैक्टिस हम अपना रिलीजन यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं. ये आपको यहाँ पे बताया गया है कि हर एक इंसान वहाँ पे एंजॉय कर सकता है अपने रिलीजन से लेके अपने कास्ट से लेके अपने फेस्टिवल से लेके सब कुछ वहाँ पे एंजॉय करता है. ओके. वो हो कम्युनलिस्ट ना हो तो भी वो एंजॉय कर सकते. Thus the devout Hindu can say with pride that he is Hindu. Muslim can declare his faith in Islam. The Sikh can faith the Sikh can faithfully follow the tenets of his religion, and yet none of them may be the communalist. तो उसके हिसाब से जितना एंजॉय किया इसको फ्रीडम दिया गया रिलीजन से लेके तो हिंदू बताता है कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम बताता है कि वो मुस्लिम है, सिख बताता है कि वो हम बोलते हैं कि सिख बताता है कि ये मेरा रिलीजन है. ओके. पर उसमें से कोई भी कम्युनलिस्ट नहीं है. आफ्टर ऑल एवरी रिलीजन every religion teaches the tolerance towards the other faith. तो आखिर में वही सभी जो जो धर्म होते हैं
उनका जो उद्देश्य है बताने का कि उनका उद्देश्य क्या है कि दूसरों की कीमत की जाए, टॉलरेंस टुवर्ड द अदर फेथ, दूसरों को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। Thus we may say that a person becomes a communalist only when he practices पॉलिटिक्स बाय लिंकिंग इट टू द रिलीजन, कि कम्युनलिस्ट कभी बन सकता है इंसान कि वो अपने रिलीजन को अपने पॉलिटिक्स के साथ जब ज्वाइन करता है, उसको जोड़ देता है, उसका गैर फायदा उठाता है, तभी वो कम्युनलिस्ट बन सकता है। ओके, the communalism is not a recent phenomenon. As stated above that before the independence, Britishers followed divide and rule policy by exploiting the communal feelings of Hinduism. तो कम्युनलिज्म ये कोई अभी रिसेंट फिनोमेनन नहीं है, अभी कोई ये अभी की घटना नहीं है, वो तो वर्षों से चले आ रही है, क्योंकि वो तो ब्रिटिश लोगों ने एस्टेब्लिश किया डिवाइड और रूल। क्योंकि कान भरना, हम बोलते कि लोगों के कान खराब करना, हिंदू मुस्लिम में जो एकता थी उनका उन्होंने बंटवारा कर दिया। Of course, India did gain the independence, but it was a great cause कि हाँ, इंडिया को वो तो मिली, हम बोलते हैं कि क्या बोले, फ्रीडम तो मिल गई, लेकिन उसके लिए उसने बहुत सारे त्याग, उसने बहुत सारा बलिदान दिया है। The partition of the country led to the formation of the Pakistan as an Islamic state. तो जब भी हिंदू मुस्लिम की उस टाइम जो हम बोलते कि बंटवारा हुआ, तो एक हमें पाकिस्तान, वो एक हमें इस्लामिक स्टेट की, इस्लामिक कंट्री और इस्लामिक स्टेट के रूप में हमें वहाँ पे नजर आया।